Yes, good afternoon, students. We are going to start with today's lecture. So I'll start from the point where we left last time. So last time we were discussing differentiability and we had done questions on the same. We also understood what is the meaning of being differentiable and we had done the questions that if we want to check differentiability at a particular point, then we should be checking whether this limit exists or not, exists uniquely or not. And then particularly we saw the connection of differentiability with CR conditions. We had done two results on that. So today we are going to continue to the next concept. So let me write this first. These were our CR equations or CR conditions. So if a function is differentiable at a particular point, then CR conditions will be satisfied at that point. And what was the converse of it? That if CR conditions are satisfied at a particular point and these derivatives ux, uy, bx, vy happen to be continuous, then the function will be differentiable. So that was the connection between differentiability and CR conditions. So today we are going to discuss the next concept, which is analyticity of function of a complex variable. So let me give you the definition of analytic function first. So analytic function is defined like this. A function f of z is said to be analytic at a point z naught if it is differentiable in some neighborhood of z naught. So as I told you the hierarchy in the beginning, that from limit we will move towards continuity, and from continuity we will go to differentiability, and then from differentiability now we are moving towards analyticity. So for a function to be analytic, this is something being more than just being differentiable. So if you read the definition, it is said to be analytic at a particular point if it is differentiable in some neighborhood of that point. So differentiability was discussed only at a particular point. So at that point, this limit should exist. So if a function is differentiable, say at a particular point, and we are able to find a neighborhood of that point where the function is differentiable everywhere. So this is how neighborhoods are defined in domains or in complex plane, right? So this is how neighborhood will look like. You can imagine it like in the similar lines that on a real line, if I say what is the meaning of a neighborhood on a real line, so on a real line, neighborhood means an open interval around that particular point. If you are able to find an interval containing that point, so that is kind of a neighborhood, because there are points lying very very close to that point. But in two-dimensional plane, if you're in a two-dimensional plane and I want you to define a neighborhood of this, so in this two-dimensional plane, neighborhood will look like an open disk around. So it will not be an interval, it will be an open disk around that particular point in xy plane. And since in complex also we have the domain is xy plane basically, so we know that whatever points are on the y-axis, they are representing the imaginary parts, x-axis points are the real parts, but the representation is still in a two-dimensional plane. So in a complex plane also the neighborhoods are defined like this. So this is about the understanding of the word of neighborhood. So if you are able to find a neighborhood of a particular point and the function is differentiable not only at z naught but at all the points lying in this neighborhood, then we will say the function is analytic. So I hope you got the meaning, that it's being differentiable at a point and it's also being differentiable in a close neighborhood. So how many points are there in the neighborhood of this point? This is a question which I'm asking for you, asking from you. So if you will be giving me right answer, so I'll understand that you understood the meaning of neighborhood.
how many points are there going to be in a neighborhood of a particular point? Can anybody answer this? Infinite, right? That's clear. Everybody is answering infinite. It's very understandable, because even in a real line, howsoever small your interval be, even if I give you an interval like 1.99 to 1.995, say I give you an open interval or even a closed interval along a real line, we know that how many points it contains. It contains infinitely many real numbers, right? Infinitely many points. So the same happens in two-dimensional plane also. Whenever you are going to draw a region or a neighborhood or an open disk, there are actually infinitely number of points. So that means for a function to be analytic, it should be differentiable at infinitely many points. Okay, it's and how those infinitely many points are there, that is around z0. There should be some neighborhood. So the point is some neighborhood. What is the meaning of some neighborhood? Some neighborhood is a relative term now, because say if this is my point, then you can say this is also a neighborhood, you can say this is also a neighborhood, you can say this is also a neighborhood. In fact, the whole complex plane acts as a neighborhood of that point, but we are not supposed to check that differentiability in every neighborhood. It has to be done in some neighborhood, that there exists some neighborhood in which it is differentiable everywhere. For example, suppose the particular function is there which is not differentiable at this point. Suppose ये कोई point है 1,0, यहाँ पे वो function differentiable नहीं है, but आप इस point पे analytic check कर रहे हो. Suppose इस point पे आपका function जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, बट इस पॉइंट के अराउंड आपको एक तो नेबरहुड मिल ही गया है जिसमें सभी पॉइंट्स पे आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है. तब आप बोलोगे कि दिस फंक्शन इज एनालिटिक एट पॉइंट whatever point it is. So I hope the meaning of the word analytic is clear to you, right? If anybody has any doubt, please you can ask. What is the meaning of being analytic? The meaning of being analytic is differentiable at that point and also differentiable in the neighborhood of that point. And now we will come to the questions. Because being analytic means you need differentiability at infinitely many points, and there is actually no way theoretically that you will be checking. अब आपको question आएगा check whether this function is analytic at a particular point or not. तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लोगे, क्योंकि पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करनी है वो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम सीआर कंडीशंस के साथ इनके साथ अगर कंटिन्यूटी की कंडीशन भी ऐड हो जाए तो हमें पता है कि पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर सकते हैं. तो इट्स इजी टू चेक differentiability at a point, but it's practically impossible to check differentiability at infinitely many points. So that means ये जो theoretical definition analytic function की, this directly will not be used in the questions to check the analyticity of the function. So there should be some mathematical condition, right? Yes. Okay, Vidushi, I'm explaining this again. Those who have joined late, so I'm explaining again what we have discussed. This is the meaning of being analytic, that a function is said to be analytic if it is differentiable in some neighborhood of z0. Obviously, if it is differentiable at z0 and in some neighborhood of z0, तो उसके neighborhood में infinitely many points को differentiable होना चाहिए. And then I'm explaining you that since infinitely many points पे differentiability check करना is not practical for us, so therefore we will be using some sort of mathematical conditions which will help us to guarantee or help us to check the analyticity of the function. So this is our next question. Then how to check the analyticity of the function, right? Now the answer is something we already know. The answer lies in CR conditions, because you understand that एनालिटिक होना कुछ अलग नहीं है, एनालिटिक होना डिफरेंशिएबल होना ही है, बट वो डिफरेंशिएबिलिटी हमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे चाहिए. तो कंडीशंस आपकी वही चेक होंगी सीआर कंडीशंस, बिकॉज दे वर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर डिफरेंशिएबिलिटी. CR conditions are the necessary conditions for differentiability. अगर CR condition satisfy नहीं है तो हमें पता है फंक्शन डिफरेंशिएबल
नहीं होगा। अगर सेटिस्फाइड है और साथ में डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस भी हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। सो लेट्स डू द क्वेश्चंस, फिर आपको क्लियर हो जाएगा that how what kind of questions we are going to have in this, right? So firstly I'm going to take the question of your tute sheet only. So this asks you check whether the given function is analytic or not, or the statement can also be like determine the points where the given function is analytic. So anything can be asked, right? You can be asked check whether the function is analytic, or it can be a specific point which can be given to you, or it can be a general question like determine the points where the function is analytic, but the technique in all the questions is going to be same. So let me take the function which is given to you. So this is a function given to me, xy square plus 2 plus iota y. So you can be given directly as a function of z also. तो अगर आपको डायरेक्टली z का फंक्शन गिवन होता है तो हमें पता है उसको हमें u प्लस आई वी की फॉर्म में तो कन्वर्ट करना ही करना है, बिकॉज सीआर कंडीशंस के लिए वी नीड दैट. तो ये डायरेक्टली आपको u प्लस आई वी की फॉर्म में गिवन है. सो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ये u है रियल पार्ट, और आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है v, विच इज y. सो दिस इज u प्लस आयोटा v. So we got u, we got v, and now we need to check कि CR कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, क्योंकि वो नेसेसरी कंडीशन है तो आप वही चेक करोगे. कंटिन्यूटी वो सब चीजें बाद की बात है, तो पहले हम CR कंडीशन ही वेरीफाई करते हैं, राइट? सो फाइंड ux. What is ux? The derivative of u with respect to x, you can see this is y square uy. What is uy? It is 2xy. What is vx? Vx is 0. And what is vy? Vy is 1. It's very easy to find these partial derivatives. These are function of two variables. All of you already know how to find the partial derivatives with respect to x and y. So I'm simply writing them. Now for CR conditions to be true, तो CR conditions के लिए क्या होना चाहिए? ux should be same as vy and uy should be same as minus vx. So this should be same as this. So means y square should be same as 1. तो ये अब क्वेश्चन इसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है कि हम वो पॉइंट्स डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है. तो हम क्या कर रहे हैं? सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करा रहे हैं. अगर वहां से पॉइंट्स आएंगे तो हम इसका आंसर करेंगे. तो y square is 1. So what does it give me? Y is plus minus 1. Y can have two values. And what about uy is minus vx? So uy is minus vx. So you will get 2xy is 0. अब क्योंकि equations जो हैं simultaneously solve होनी है, means they should be satisfied at the same time. तो जो y plus minus 1 है तो obviously वो आप इसमें plug in कर सकते हो. So this will give you plus minus 2x is 0. It implies x is 0 because y तो non-zero है. So the only possibility for this to be equal to 0 is x is 0. So how many points did you get? So points where your CR conditions are true or satisfied. कितने points मिले आपको? 0,1, 0,-1, क्योंकि x की वैल्यू 0 मिली है, y की वैल्यू 2 मिली है +-1. So you got 2 points. These are the only 2 points in the complex plane where CR conditions are satisfied, right? So that means at these 2 points only you are going to get the differentiability. वो भी guarantee नहीं है. Differentiability के लिए I told you क्या आता है? CR conditions plus derivatives continuous होने चाहिए. तो derivatives तो आप देख सकते हो आपके continuous हैं. If you look at these derivatives, these are polynomials, right? Y square ये तो constants है, ये दोनों polynomials हैं in x and y. So these are continuous. So that means in points पे आपका function differentiable तो है, but हमारा क्वेश्चन डिफरेंशिएबल नहीं है. हमारा क्वेश्चन क्या है? एनालिटिक है कि नहीं है. सो नाउ आई विल आस्क यू, इफ यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एनालिटिक व्हिच आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू, कि बीइंग एनालिटिक मींस बीइंग डिफरेंशिएबल एट infinitely many points. This is what I just told you.
So now you should be able to tell me whether this given function is analytic at these points or anywhere, whether this is true or not. तो एक पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हम सिर्फ इन पॉइंट्स को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसके अलावा जितने बाकी पॉइंट्स हैं पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, वहां तो डेफिनेटली एनालिटिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, क्योंकि सीआर कंडीशन सिर्फ दो ही पॉइंट्स पे सेटिस्फाई हो रही है, राइट? तो जो कंसर्न है सिर्फ इन्हीं दोनों पॉइंट्स का है कि इन दोनों पॉइंट्स पे हमारे पास ओके डिफरेंशिएबिलिटी तो है, बट हमें वो आंसर करना ही नहीं है, हमें इनके नेबरहुड्स में देखना है। अब आपको 0,1 पॉइंट है ये, अब क्या आपको 0,1 के अराउंड एक ओपन डिस्क ऐसा मिल सकता है जिसमें सभी पॉइंट्स पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो? सो यू जस्ट आंसर मी इन यस और नो. Will you be able to find a neighborhood around 0,1? Firstly, I'm considering this point, so that at every point in that neighborhood, your function is differentiable. Is it yes or no? I repeat my question. If anybody feels they have not got it, will you be able to find a neighborhood? The way I have explained UP neighborhood इस तरह के होते हैं. Will you be able to find a neighborhood around this point जिसमें फंक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है? मैंने अभी आपको बताया कि आपकी डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स पे है और कहीं नहीं है, बिकॉज इन दोनों पॉइंट्स के अलावा कहीं पे भी सीआर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है. सो इट्स वेरी क्लियर कि 0,1 के अराउंड कोई भी नेबरहुड ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि नेबरहुड मिलने का मतलब है जैसे आप इस पॉइंट से थोड़ा सा मूव किए नेबरहुड में आए, पॉइंट के ऊपर हो तो सीआर कंडीशन सेटिस्फाइड है, जैसे आप पॉइंट के अराउंड थोड़ा सा भी मूव किए अपने नेबरहुड में गए, you will lose the differentiability, therefore not analytic. And similar is the case with this point 0,-1. इसके अराउंड भी आपको कोई भी howsoever small possible neighborhood you want to draw or find around that point, you will not be able to do that. So therefore the given function is not analytic anywhere. कहीं पे भी नहीं है वो. तो आपको आंसर मिल गया है. तो आपकी जो सीआर कंडीशंस जब भी सिर्फ ऐसे डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स में मिलेंगी आपको कि अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पे है सेटिस्फाई, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, वो फंक्शन कभी भी एनालिटिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट वाली है, इंटरवल्स वाली नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर नाउ, राइट? सो यही फर्क है बस डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिसिटी में. ये क्वेश्चन में अगर एनालिटिक की जगह डिफरेंशिएबल लिखा होता, सो यस वी हैव डिफरेंशिएबिलिटी एट दिस पॉइंट्स बिकॉज सीआर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड वी नो ux uy vx vy आर कंटिन्यूअस. तो उनके आप देख सकते हो ये कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, ये तो कांस्टेंट्स ही हैं, तो बीइंग कांस्टेंट इज कंटिन्यूअस. तो डिफरेंशिएबिलिटी है बट उनके नेबरहुड्स में डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, सो एनालिटिसिटी नहीं है, सो ये फंक्शन कहीं भी एनालिटिक नहीं है. सो यस, ओके अर्जुन यू कैन आस्क योर डाउट. मैम अगर फंक्शन किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो फिर वो एनालिटिकल होएगा, बिकॉज उसका जो नेबरहुड है अगर छोटा ले लिया तो फिर वो एनालिटिकल होएगा, नेबरहुड अगर बड़ा है तो नहीं होएगा. हाँ, छोटा जितना मर्जी छोटा ले लो, वही तो मैंने समझाया था कि एक नेबरहुड मिलना चाहिए बस. सम नेबरहुड howsoever small that neighborhood may be, if you are able to find, obviously अगर एक मिलता है तो इनफाइनाइट मिलते हैं, क्योंकि आप उस एक को भी जितना भी छोटे से छोटा बना सकते हो, यू नो. इट्स नेवर गोइंग टू बी कि एक ही नेबरहुड मिला है, उससे बड़ा करने पे यू मे लूज, क्योंकि आप हो सकता है उन पॉइंट्स पे चले जाओ जहां पे नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी. बट इवन इफ यू आर एबल टू फाइंड वन पॉइंट, सॉरी वन नेबरहुड स्मॉल एज पॉसिबल, यस इट इज गोइंग टू बी एनालिटिक. बट तो उसके लिए वही मैंने बताया कि आप छोटे से छोटा भी बनाओगे ना तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे चाहिए, क्योंकि जितना मर्जी छोटा नेबरहुड ड्रॉ करो उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे. बट ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया ये कह रहा है कि सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स पे ही डिफरेंशिएबल है फंक्शन, क्लियरली जस्ट फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. सो हाउ यू कैन आंसर दिस इज एनालिटिक? ठीक है, तो बीइंग एनालिटिक इज बीइंग डिफरेंशिएबल एट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इनडायरेक्टली. तो मैंने आपको ये समझाने के लिए बोल रही हूँ, उसकी डेफिनेशन में नहीं लिखा है, उसकी डेफिनेशन में वो नेबरहुड बोल रहे हैं, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू द मीनिंग ऑफ नेबरहुड
is being differentiable at infinitely many points. Therefore you will get that. We are coming to that kind of question also. आपको दिखेगी analyticity, but ये question ऐसा था जिसमें CR कंडीशन सिर्फ फाइनाइटली मैनी डिस्क्रीट ऐसे दूर दूर हैं वो पॉइंट, दूर क्या वो इवन इफ दे आर क्लोज टू ईच अदर, राइट, हाउस एवर क्लोज दे आर, आप उनके अराउंड एक कोई भी नेबरहुड बनाओ, आइसोलेटेड नेबरहुड बना सकते हो जिसमें इवन आप इसको भी नेबरहुड कंसिडर कर लो, तो पूरे नेबरहुड में 2 ही पॉइंट्स है जिन पे डिफरेंशिएबिलिटी है, बाकी सब में डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, सो एनालिटिसिटी नहीं. नाउ इफ एनीबडी हैज स्टिल द डाउट प्लीज आस्क. यस उदय. मैम ये जो मैम एनालिटिसिटी है मैम, इसके अंदर मैम ये टेंडिंग टू वाला आ रहा है कि मैम हम उसके नेबरहुड का मतलब उस रीजन को उस पॉइंट पे टेंड करना चाहिए जिस पे हम डिफरेंशिएबिलिटी कह रहे हैं. नहीं, टेंडिंग टू नहीं है, इट्स लाइक समथिंग कि अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि उसकी जो वो प्रॉपर्टी है सिर्फ उस पॉइंट पे ही नहीं है, उसके अराउंड उसके डोमेन में भी है. एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट जो है ये ज्यादा रिलेटेड है टेलर्स सीरीज से. इसका जो मेन कॉन्सेप्ट रिलेटेड है ये होलोमॉर्फिक फंक्शंस होते हैं. ये वो फंक्शंस होते हैं जिनको हम टेलर सीरीज में यूज करते हैं. अब टेलर सीरीज में इफ यू रिमेम्बर हम हमेशा ऐसे करते थे ना, f of x is f of a plus x minus a. रियल में आपको एग्जांपल दे रही हूँ, रियल वेरिएबल्स की सेंस में. तो वहां पे यही होता था कि a पॉइंट पे तो हमें पता है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, a पे तो हम उसके इनफाइनाइटली मेनी डेरिवेटिव्स यूज कर रहे हैं, तो उसके नेबरहुड में क्योंकि x देखो ना, x इक्वल टू a नहीं है, x माइनस a का मतलब है कि x इज समवेयर अराउंड a. तो तभी हम कहते थे कि ये है टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन अबाउट द पॉइंट x इक्वल्स टू a. तो ये वहां से कॉन्सेप्ट आता है कि आपको फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी स्मूथनेस है, उनकी डिफरेंशिएबिलिटी है, सिर्फ उस पॉइंट पे नहीं चाहिए, आपको उससे ज्यादा चाहिए ताकि आप उसके नेबरहुड पे काम कर सको. तो इट्स रिलेटेड टू दैट. मैं ज्योमेट्रिकली भी आपको नहीं समझा सकती हूँ बिकॉज कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकली समझने के लिए वी विल रिक्वायर मोर डायमेंशन बिकॉज हमें फंक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा, बट दैट्स हाउ इट इज रिलेटेड. तो बस आप ये याद रखो कि being analytic means being differentiable in a neighborhood of that point, and since neighborhood draw करने के लिए infinitely many points होने चाहिए, तो इसलिए आपको वो मिलेगा. तो I am coming to that kind of question. मे बी उस क्वेश्चन को करने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसमें आपको दिखेगा कि फंक्शन एनालिटिक है. So so let me do that. उसके बाद भी किसी को डाउट हुआ then I'll explain. So this function is given to me. Show that this function is analytic everywhere except at z is equal to 1. Right? So ये है अलग तरह का क्वेश्चन. इसमें बता दिया कि प्रूफ करो एनालिटिक है. इसकी सेम स्टेटमेंट वैसे भी हो सकती थी कि चेक वेदर द फंक्शन इज एनालिटिक और डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज वेयर इट इज एनालिटिक. सो हाउसएवर इट इज, हमें सेम ही टेक्निक फॉलो करना है. सो यहाँ पे z को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस iy की फॉर्म में, यू नो दैट, एंड everybody knows what is the next step. We should be rationalizing this one to make it in that form. u plus iv की फॉर्म में लिखने के लिए हमेशा ऐसे करना पड़ेगा. So I'm quickly writing what you will be getting. This will be x minus 1 plus I. This will be minus y, and in the it's very easy to write that denominator में ये आपका square हो जाएगा. So your u is basically x minus 1 over x minus 1 का square plus y square, and your v is minus y x minus 1 का square plus y square. It's simply I have separated this in real and imaginary parts to write this in this form. So you got your u and v. Now first of all you look at this point. ये point z equals to 1 तो इसकी डोमेन में ही नहीं है. As you can clearly see, z equals to 1 पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है. बिकॉज तो इट्स लाइक जैसे हम बोलते हैं कि कंटिन्यूटी के लिए एनालिटिसिटी अब डिफरेंशिएबिलिटी से भी आगे है, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूटी उसके लिए नेसेसरी होगी, क्योंकि आप पहले कंटिन्यूस होगा फिर डिफरेंशिएबल होगा फिर एनालिटिक की बात आती है. तो हमें पता है कि कंटिन्यूस होने के लिए वो पॉइंट उसकी डोमेन में होना चाहिए. तो यहाँ पे z इक्वल्स टू 1 एक्चुअली उसकी डोमेन में ही नहीं है, फंक्शन ही वहां पे डिफाइंड नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट्स लाइक रिटन लाइक दिस कि उस पे तो एनालिटिक होने का सवाल ही नहीं है.
वहां तो एनालिटिक हो ही नहीं सकता है। तो दिस इज समथिंग ट्रिवियल, ये ना भी लिखेंगे इस क्वेश्चन में वो फिर भी हमें पता है कि z इक्वल्स टू 1 पे तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो जहां फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है उस पॉइंट पे तो हम बात भी नहीं करते हैं। तो इट्स लाइक द अदर पार्ट यू हैव टू आंसर कि इस पॉइंट को छोड़ के सब जगह ये क्या है, एनालिटिक है, राइट। आई होप दैट इज क्लियर। तो z इक्वल्स टू 1 तो क्लियर ही है, बिकॉज यहां से ही आप देख सकते हो z इक्वल्स टू 1 मीन्स, यहां से भी देख सकते हो फंक्शन की डेफिनेशन से, सॉरी, आप फंक्शन की डेफिनेशन से भी देख सकते हो z इक्वल्स टू 1 पे, या फिर ये u और v से भी देख सकते हो, क्योंकि ये देखो x इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल टू 0। सो जो 1,0 एज अ ऑर्डर्ड पेयर अगर उस पॉइंट को देखना चाहते हो तो 1,0 इज द प्रोबेबिलिटिक पॉइंट जिसपे u और v डिफाइंड नहीं है, तो दैट पॉइंट इज क्लियर, उस पे तो एनालिटिक आएगा ही नहीं। तो हम बाकी पॉइंट्स के लिए इन जनरल, तो उसके लिए हमें CR कंडीशंस चेक करनी है। सो अगेन वी नीड टू फाइंड दीज डेरिवेटिव्स। सो मैं सीधा लिख रही हूँ वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव्स, आप कर सकते हो पार्शियल डेरिवेटिव्स इजीली फाइंड u और v की डेफिनेशन से। सो आई एम सिंपली राइटिंग देम, दिस इज द वैल्यू ऑफ ux, this is the value of uy, later on you can verify the calculation अगर आपको लगेगा कुछ मिस्टेक है। vx is this, ये वैसे ही निकालना डेरिवेटिव्स द वे यू विल जस्ट फाइंड फॉर एनी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, राइट। तो ये मैंने चारों डेरिवेटिव्स निकाल लिए फ्रॉम दीज u एंड v, ux uy vx vy। अब CR कंडीशंस हैं ux should be same as vy and uy should be same as minus vx। so you look at that, ये सेम ही आ रहे हैं, these two are same and these two vx you can see it's a negative sign here, ये दोनों भी सेम आ रहे हैं। so CR conditions are satisfied for all x and y, obviously except which point 1,0, क्योंकि 1,0 पे तो वो डिफाइंड ही नहीं है, तो 1,0 को छोड़ के हमेशा वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो इस फंक्शन में, इस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस हुआ, वहां पे जब जैसे हमने देखा कि CR कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, तो हमारे पास कुछ कंडीशंस आई x और y के ऊपर कि ये x होगा ये y होगा तभी सेटिस्फाई होंगी, दैट मीन्स लिस्ट ऑफ पॉइंट्स आ जानी शुरू हो जाएगी आपके पास। बट इस क्वेश्चन में क्या है, उनके एब्सोल्युटली, मतलब उनको आप देखोगे कि अगर, तो बिना किसी कंडीशन के x और y के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y दे आर ऑलवेज इक्वल, मींस दीज आर ऑलवेज सेटिस्फाइड। सो देयरफॉर क्या हो गया, इन पॉइंट्स पे, इन सभी पॉइंट्स पे आपका फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल, क्योंकि कंटिन्यूस भी हैं ये डेरिवेटिव्स। It's not CR conditions directly differentiability नहीं अप्लाई करते हैं, so I'm writing CR conditions are satisfied and ux uy vx vy are continuous, क्योंकि ये कौन से फंक्शन है, रैशनल फंक्शंस हैं, a polynomial divided by another polynomial, right। तो ये कंटिन्यूस एवरीवेयर, ऑब्वियसली सिर्फ 1,0 को छोड़ के वहां जहां वो डिफाइंड ही नहीं है। तो CR कंडीशंस और कंटिन्यूटी गिव्स यू डिफरेंशिएबिलिटी एट ऑल x, y। तो दैट मींस ये है पॉइंट आपका 1,0, इसको छोड़ के अब आप कहीं पे भी डोमेन में कोई भी पॉइंट ले लो, उसके अराउंड, अब यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्योंकि इट्स डिफरेंशिएबल एट ऑल x y, तो उसके अराउंड कोई भी नेबरहुड बनाओगे तो यू विल बी ऑलवेज एबल टू फाइंड अ नेबरहुड इन विच फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। यहाँ पे भी कोई भी पॉइंट लिया उसके अराउंड आपको नेबरहुड मिल ही जाएगा, कोई भी नेबरहुड बना लो। तो यहाँ पे भी इवन आप इस एक्सिस पे भी पॉइंट लेते हो 1,0 को छोड़ के, you will always be able to find a neighborhood. Even आप 1,0 के बहुत पास भी ले लोगे, still you will be able to find a neighborhood, howsoever small it may be. So therefore the answer to this question is, ये तो prove ही करना था, that prove that this function is analytic everywhere except at this point, right? So ये सिर्फ आपको wording में ही लिखना है, that CR condition satisfy हो गई, continuous है तो differentiability आ गई, and उसके बाद simply you just write therefore analytic for all xy not equal to 1,0, z not equals to 1, right? So this is the kind of question you will be getting with this. Yes, Raghav, to answer your question, neighborhood कैसे पता चलेगा? Neighborhood determine करना is not the
question. They are not asking you to find that neighborhood. We can see अब यहाँ पे हर जगह फंक्शन एनालिटिक है, डिफरेंशिएबल है, हर जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, राइट? सो हम कह रहे हैं एनालिटिक होने का मतलब है कि कहीं पे भी हो डिफरेंशिएबल, उसके अराउंड नेबरहुड में भी होना चाहिए. तो क्योंकि यहाँ पे हर जगह ही डिफरेंशिएबल है, तो नेबरहुड कोई भी बना लो, किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे यू विल गेट, अच्छा यहाँ डिफरेंशिएबल है, उसके नेबरहुड में भी है, अच्छा यहाँ भी डिफरेंशिएबल है, उसका नेबरहुड मिल ही जाएगा कोई ना कोई जिसमें वो डिफरेंशिएबल है, राइट? सो जस्ट अ मोमेंट, जस्ट गिव मी 1 सेक, 1 मिनट, 1 मिनट में अनम्यूट कर लूं. हेलो, हाँ हाँ हाँ, वो घर पे ही पड़ी है, 1 मिनट बताती हूँ, 1 मिनट यार. Okay, yes. Raghav, you can speak. Hello. 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 Ma'am, you were muted. I got to know. Yes, Raghav, you can now ask your doubt. मैम मैं पूछ रहा था, जैसे लास्ट क्वेश्चन जब हमने करा था उसमें हमने नेबरहुड हमने बोला कि नहीं होगा, क्योंकि मतलब सिर्फ 2 पॉइंट्स आए थे मेरे पास. हाँ, क्योंकि डिस्क्रीट पॉइंट्स थे ना, तो आई कैन इजीली से कि 0,1 के वो एक ही पॉइंट पे है. अब जैसे मैं उस पॉइंट से थोड़ा सा भी नेबरहुड में जाने की कोशिश करूंगी, अब कितना भी छोटे से छोटा नेबरहुड बना लो, यू विल लूज द डिफरेंशिएबिलिटी. नेबरहुड का मतलब हो गया मतलब एक उसके अराउंड सर्कल, मतलब पॉइंट के उसके अराउंड. हाँ, पॉइंट के अराउंड सर्कल. अब सर्कल छोड़ो, आप थोड़ा सा भी उस पॉइंट से मूव कर जाओ, अब 0,1.001 पे भी चले जाओ, even if you remain on the same तो वो axis. satisfy नहीं जैसे करेगा. उस पॉइंट से थोड़ा सा भी मूव किए, you will lose the differentiability. तो there is no point of being analytic, क्योंकि analytic होना means आपको नेबरहुड में डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए, तो वो इसलिए नहीं होगा. तो यहाँ से आप इन 2 क्वेश्चन से यही कंक्लूड कर सकते हो कि जब भी ऐसे आपके पास पॉइंट्स आएंगे ना, डिस्क्रीट अलग अलग पॉइंट्स आ गए जहां पे सीआर कंडीशन सेटिस्फाइड है, whenever you will get a set of points, you will never have the analyticity, क्योंकि वो discrete points हैं, right? ओके मैम, मतलब मैम जहाँ पे ओवरऑल पूरे एक्स पे सेटिस्फाई हो जाएगा वो हाँ, तभी मिलेगी आपको. ठीक है मैम. राइट? 1 मिनट में दोबारा से शेयर करती हूँ. Just lost something. Yeah, so I hope it is clear now. There were 2 kind of questions. एक में आया analytic, एक में नहीं आया हमारे पास. तो you can practice more questions like this, and अगर आपको फिर भी doubts होंगे तो हम doubt class रख लेंगे. Let me go ahead in the same chapter. So the next definition we have is harmonic function. So let me define this. What is a harmonic function? So harmonic function is a real valued function basically. So a real valued function of 2 variables. That's the condition. It should be a function of 2 variables. This is said to be harmonic if, so let me define the function, say let's have the notation g. Say it's a function of 2 variable x and y. If gxx plus gyy is equal to 0. So if any function of 2 variables, so you can treat this definition as a general definition. Later on, we will now connect this with being analytic. But abhi ye ek independent definition hai for a function of, for a real valued function of 2 variables. Because इस तरह के functions हमारे पास इसमें है, तो हम connect करेंगे. But this is what the meaning of being harmonic is. Function is said to be harmonic if it satisfies this. gxx plus gyy is equal to 0. ये Laplace equation होता है. It has some connection with the, it has some deeper connection with the, this is coming as a solution of the elliptic equations. But
लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स, क्योंकि फिर वो बहुत डाइवर्ट हो जाएगा हमारे टॉपिक से. इसकी एप्लीकेशंस आई विल टेल यू सम अदर डे. अभी के लिए आई कैन जस्ट टेल यू दैट मैथमेटिकली वी कैन अंडरस्टैंड एनी गिवन फंक्शन इफ सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन, इसको लैपलास इक्वेशन बोलते हैं, then that function is said to be harmonic. So example, we can have example, say if you are given, say this function 3x square y minus y cube plus 4. So let's see whether this is harmonic or not. So पहला तो ये है कि आपको एक given function को check करना है वो harmonic है कि नहीं है. Simply आपको ये condition verify करनी है. So उसके लिए आपको ये double derivatives find करने पड़ेंगे. So what is gx? Gx is 6xy. Clearly, what is gxx? That is 6y. What is gy? Gy is 3x square minus 3y square. And what is gyy? Is minus 6y. So if you add these two, gxx plus gyy, I can see that I will get 0. Absolutely 0 आना चाहिए. So if it is coming 0, so done. Therefore, this function is an example of a harmonic function. Right? So you can, given any function, you can always check whether this is harmonic or not just by checking this definition, just this condition. Now we are going to connect this with analyticity. So there is a theorem which will connect, which will give you that connection. So that result is, if a function fz is u plus iv is analytic in a domain, domain कोई भी functions का जैसे domain होता है, so for that उस domain में suppose वो analytic है, then u and v both are harmonic functions in the same domain, obviously. जहां पे वो डिफाइंड है तो डोमेन में ही है. तो ये कनेक्शन है बीइंग एनालिटिक और बीइंग हार्मोनिक में, कि हार्मोनिक जो फंक्शन है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. सो वी वेरीफाइड एंड वी चेक. अब कनेक्शन क्या है कि जो ये u और v होते हैं एनालिटिक फंक्शन के, u और v दोनों हार्मोनिक फंक्शंस होंगे. ये बहुत इजी है वेरीफाई करना. अगर आप इसको प्रूव भी करना चाहते हो, ये CR कंडीशन से हो जाता है. बट राइट नाउ right now I'm not going to go to the proof of this, but इसका जो अगर प्रूफ करना चाहोगे, आप देखना चाहोगे, देख सकते हो, ये CR कंडीशन से ही हो जाता है. क्योंकि हम कहेंगे कि एनालिटिक है तो CR कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ही होंगी, और CR कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हार्मोनिक हो जाएंगे. डबल डेरिवेटिव्स आप निकाल सकते हो, बट वेरी इजिली यू कैन प्रूव दिस. बट नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस इंफॉर्मेशन इन डूइंग सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो इसको हम कैसे यूज करेंगे इस इंफॉर्मेशन को? सो उसके लिए वी नीड टू हैव, let me just give you one more definition, then we will go to the questions. अब हम बोल रहे हैं कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसके जो दोनों पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, एज अ फंक्शन, बिकॉज बोथ u and v are real valued functions, right? They are functions of x and y individually, they are real valued functions. ये दोनों हार्मोनिक होंगे. So this u and v are known as harmonic conjugates of each other. ये दोनों हार्मोनिक है, इनको एक दूसरे का कंजुगेट बोला जाता है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, वो कुछ और था. कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमें पता है z बार होता है, that is something different. This is a harmonic conjugate, that two functions are said to be harmonic conjugate of each other if both of them first of all should be harmonic and the function should be analytic. So I have just not repeated that. मैंने बोल दिया आपको कि जब भी u और v ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है, तो उन दोनों को एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोला जाएगा. राइट? अब ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट वर्ड क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है? क्योंकि इसके बेस पे हमें क्वेश्चंस मिलेंगे. अब क्वेश्चन किस तरह का होगा? क्वेश्चन में ये है कि आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि एक फंक्शन है जो एनालिटिक है और आपको सिर्फ उसका रियल पार्ट पता है. सो यू कैन डिटरमाइन इट्स इमेजिनरी पार्ट, और you will be given its imaginary part and you are supposed to find its real part. तो दोनों में से u और v में से एक given होगा, v दूसरा आपको find करना है. So the kind of question you will be getting is find harmonic conjugate of the given function and
find the analytic function. fz is u plus iv. तो ओवरऑल आपका अल्टीमेट एम है आपको फंक्शन एनालिटिक फाइंड करना है. तो आपको u गिवन होगा या v गिवन होगा. कौन सा गिवन है, रियल के इमेजिनरी, वो इंफॉर्मेशन भी होगी आपके पास. सो लेट्स जस्ट डायरेक्टली डू द क्वेश्चन एंड वी विल सी दैट हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो हम दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे. एनालिटिक होने का क्या मतलब है वो भी इसमें यूज करेंगे. सो लेट्स डू द फर्स्ट एग्जांपल. uxy is 2xy plus 2x. So either they will be writing in words that this is the real part of the analytic function, या तो वो words में लिखेंगे, और even if they are using simply notation, तो this is like a standard notation. हमें पता है कि u जो है real part है और v जो है वो imaginary part के लिए यूज किया जाता है. So it's clear कि हमें u given है, हमें fz find करना है, उसके लिए हमें v फाइंड करना पड़ेगा. राइट. सो हाउ टू डू दिस. सो हमें पता है क्योंकि हमें ये फंक्शन है. पहले तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि ये हार्मोनिक है, बट वो हमें कहा नहीं है. इन्होंने सिंपली बोला इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करो. सो इट्स वेरी ऑब्वियस दिस फंक्शन फर्स्ट इटसेल्फ हैज टू बी हार्मोनिक. पहले तो इसको ही हार्मोनिक होना पड़ेगा. सो यू कैन वेरीफाई ux, what is the first derivative with respect to x? This is going to be 2y plus 2. What is uxx? This is 0. What is uy? Uy is 2x and what is uyy? 0. So यहाँ पे clearly uxx plus uyy 0. Therefore uxy is harmonic. ये मैंने additional किया है. They did not ask for it. उन्होंने बताया हुआ था वो information हमें. अब हमें पता है कि जो fz है वो क्या है, एनालिटिक है. इट इम्प्लाइज हम क्या यूज करेंगे, CR कंडीशंस. CR कंडीशंस आर ट्रू. सो CR कंडीशंस हैं हमारे पास दो, uy is minus vx. तो बस इन्हीं दोनों कंडीशन से आपका v की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. तो इन दोनों को यूज करके हमें दो इक्वेशन से एक अननोन निकालना है. सो लेट्स यूज दीज कंडीशंस वन बाय वन. इसको नंबर 1 बोल देते हैं, इसको नंबर 2. सो ux is vy और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं vy is ux. क्योंकि हमें u पता है तो हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. यस, व्हाट इज ux? ux हमने अभी फाइंड किया था 2y plus 2. सो दिस इज vy. सो मेरे पास vy आ गया है और दूसरी कंडीशन है vx is minus uy. uy क्या था, 2x. vx is minus 2x. अब मुझे अल्टीमेटली v फाइंड करना है. सो आई एम सपोज टू फाइंड अ फंक्शन v and I have the information of its two derivatives, partial derivatives vx and vy. So हम डेरिवेटिव हो किसी फंक्शन का हमारे पास, तो हम फंक्शन तक कैसे पहुंचेंगे? If you know the derivative of function, ठीक है, ये फुल डेरिवेटिव नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव है. If we know the partial derivative of a function, we want to extract the function. So how will you do that? Any idea? Derivative पे मुझे function पे जाना है. What should I do? Integration is the answer, right? So we know that integration techniques. तो हम integrate करेंगे. अब वो आपकी choice है. आप चाहे इस equation को integrate कर लो, चाहे इस equation को integrate कर लो. This is clearly your choice. आपको एक को choose करना है. So let me choose this one. तो अब इसको क्योंकि ये दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, so I cannot simply write integrating. If this is my say equation number 3, so integrating equation number 3 with respect to y, because this is the derivative with respect to y, so I cannot integrate with respect to x. Similarly, अगर आप फोर्थ इक्वेशन को चूज करते हो इंटीग्रेट करने के लिए, तो then you will be integrating with respect to x. तो आपको वो ध्यान रखना है क्योंकि इसमें vy है, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे with respect to y. So when you will be integrating with respect to y, so what you will be getting, इस तरफ तो आ जाएगा आपके पास v, because ये vy है, वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, उसका इंटीग्रेट किया तो v आ जाएगा. और इस तरफ क्या आएगा आपके पास, 2y square by 2, that is the integral of y, plus 2y. So this is y square plus 2y. Yes, is this correct?
Is this correct or not? Yes, plus constant, definitely we should not be forgetting the constant, because this is the integration हम general कर रहे हैं, definite integral नहीं है. So here we have to have the constant of integration. So can anybody tell me what should be the constant of integration? In general, जब हम one variable integration करते हैं, we simply add plus c, right? We know that. But here it's a function of two variables. So इसको आप integrate कर रहे हो, so what should be the constant of integration? Just think about it and give me an answer. So this is the only thing which you need to know. So let me call this. So in this case, that constant of integration is not merely going to be a constant. It is going to be a function of the other variable. Because we know that कि जब हम y के with respect to integrate कर रहे हैं, तो उसके लिए x भी हम constant treat कर रहे हैं. X is being treated like a constant when you are integrating with respect to y. तो जब आप constant of integration add करोगे, वहां पे आप function of x add करोगे, because in general it has to be a function of two variables. Because you know, अब आप इस step का दोबारा से partial derivative करो with respect to y, तो again you will go back to this, क्योंकि fx जो ये प्योरली x का फंक्शन होगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो ऑब्वियसली वो 0 आएगा, क्योंकि वो प्योरली x का फंक्शन है. तो ये जो fx मैंने ऐड किया है, दिस इज अ प्योरली फंक्शन ऑफ x. तो ये स्टेप बस आपको इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है. जब आप इंटीग्रेट करोगे, then you have to add a function of the opposite variables. आपने y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट किया, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जगह फंक्शन ऑफ x ऐड होगा. अगर आप इसको चूज करते, तो आप x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करते, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y का फंक्शन ऐड होता, राइट? फाइन. सो दिस इज लाइक दैट. सो ये मेरा v आ गया, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस f ऑफ x. अब मेरे पास एक इक्वेशन है जिसको मैंने यूज नहीं किया है, फोर्थ इक्वेशन vx. सो vx इज माइनस 2x, राइट? सो vx इज माइनस 2x. तो अब आप इन दोनों को यूज करना चाहते हो. मेरे पास अब इतनी इंफॉर्मेशन है, अब इतनी इंफॉर्मेशन है, तो v मेरे पास आ चुका है. सो आई एम ओनली नाउ इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस f ऑफ x. तो अगर मुझे f ऑफ x पता चल गया, सो आई विल गेट माई आंसर. So determine f of x, will use this condition. So to use this condition, let's differentiate this with respect to x now, because मुझे vx को equate करना है. So you differentiate with respect to x. So ये तो 0 है. This is f dash x. So when you will be comparing these two equations, you will get f dash x is minus 2x. So what should be fx? Minus x square plus c. क्योंकि अब ये एक वेरिएबल का फंक्शन है, तो अब जो मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर रही हूँ, दैट इज प्योरली अ कांस्टेंट. तो ये जो c है, दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ एनीथिंग, राइट? सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ fx. सो फाइनली आई गॉट v is y square plus 2y minus x square plus c. So this is your answer. This is what you are looking for. आपको एक u given था, आपको उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना था, मींस v फाइंड करना था. सो दिस इज द प्रोसेस. सो दिस इज द टेक्निक यू हैव टू लर्न. दिस इज वेरी इजी. आपको CR कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, तो जो फंक्शन गिवन है उसके डेरिवेटिव्स निकाल लेने हैं, तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी. दोनों में से एक को इंटीग्रेट करके आपको ऐसे करना है, और फिर उसी को डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल आपको दूसरी कंडीशन को यूज करना है, एंड यू विल गेट फाइनली योर फंक्शन. तो आपका जो एनालिटिक फंक्शन बना, आई शुड नॉट यूज f नोटेशन हियर, मैंने f यूज कर लिया. लेट्स, यू कैन यूज समथिंग एल्स. लेट्स यूज g, क्योंकि fz हम वो जो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए यूज कर रहे हैं. सो लेट्स नॉट कंफ्यूज दैट. ये अलग फंक्शन है, सो इसके लिए आप कुछ और नोटेशन यूज कर लो. इसको g बोल रही हूँ मैं, फर्क कोई नहीं पड़ता है, बट स्टिल we should be as precise as possible. So this is your finally u plus iv, where u तो आपको given ही था 2xy plus 2x, और v आपने फाइंड किया है y square plus 2y minus x square plus c. तो ये फाइनल आंसर कांस्टेंट की टर्म में ही आएगा. आपके पास एक कांस्टेंट आएगा ही आएगा आपके आंसर में, ठीक है? अब अगर मैं आपको एडिशनल एक कंडीशन बता दूं कि ये फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट में से पास करता है, क्योंकि अब ये c की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए मेरे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए. सो यू कैन यूज दैट
if that kind of information is given in the question, otherwise that is your answer. इसके अलावा अगर कोई और information question में नहीं given है, so this is your final answer for this question, right? So let's do one more question of the same kind and then you will be able to do all the questions in your tutorial sheet. So इसमें भी हमें u given है e raised to power x cos y plus phi. So let's quickly find the two derivatives. So ex is e raised to power x cos y, uy is this one. So equations है vx जो है हमारे पास है minus uy. So vx minus uy means e raised to power x sin y minus 1 हो जाएगा, और जो दूसरी कंडीशन है vy is ux. So this is e raised to power x cos y. So इस बार हम इसको यूज करते हैं, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे with respect to x. So you will get e raised to power x sin y minus x plus function of function, let's call it k. So k is a function of y, क्योंकि आपने integrate with respect to x किया है, तो constant integration will be function of y. And now I want to use this condition. So for that, differentiate this with respect to y. You will get vy is e raised to power x cos y. With respect to y कर रहे हो तो ये 0 हो जाएगा, plus k dash y. So this is vy, this is vy. So equating both of them, I will get k dash y is 0. So अगर किसी function का derivative 0 है, so that's a constant function. So simply it's just a constant which is c. So finally I got v. अब ky का value इसमें डाल दो, which is c. So v is e raised to power x sin y minus x plus c. Right? So that's how these questions needs to be done. So I hope this is clear to everyone. So this completes the this part of the chapter, and now we are approaching towards the final part of the chapter, which is very elementary and very basic. Yes, I will be definitely uploading this lecture. Okay, so this is all done about analytic and harmonic. इसमें आपके ट्यूब शीट में जितने क्वेश्चंस हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चंस we have covered. And now we are finally left with the last topic of this chapter, which is about period and zeros. तो आपको कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, उनके आपको जीरोस फाइंड करने हैं. So we should know the meaning of the zeros and all. So let me just first explain you what do you mean by zeros of a function. So zeros of a function का meaning क्या होता है? Yes, Uday, to answer your question, yes, we will be given this information that this function is analytic. तभी उनको हार्मोनिक कंजुगेट्स बोला जाएगा, बिकॉज इफ दे बोथ ऑफ देम u plus iv फॉर्म्स अ एनालिटिक फंक्शन, तभी उनको हार्मोनिक कंजुगेट्स बोला जाता है. Okay, period and zeros. So what do you mean by period of a function? Period means obviously we know that there is some p, so that if the function starts repeating its value, in that case we know that p is said to be the period of the function f of z. If there exists some p, that p can be a complex number, that p can be a real number. So if this condition is satisfied, so we know it is said to be the period. अब उसके बाद हमें periods की properties भी पता है. अगर हम उसका कोई integral multiple भी उसमें डालें, so it always going to repeat that. It's no, you already understand the meaning of the period for trigonometric functions. Sin x का period होता है 2 pi cos x. So now we are going to define some functions. फिर हम उनके period और zeros की बात करेंगे. So पहले हम functions define करते हैं, फिर हम उनके periods और zeros पे आएंगे. So we are going to do define functions here, trigonometric functions. So trigonometric functions में आपको पता है sin z और cos z. अब यहाँ पे sin और cos का वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग वो नहीं होगा जो sin x और cos x का होता है, because you know that sin x cos x का by definition क्या होता है, everybody knows. But complex में they purely have a different meaning, because यहाँ पे हम already domain हमारी plane है. So let's not go into those things. But what is the definition of this sin z? How this sin z is defined? So for that I will recall you Euler's formula.
ऑलवेज फॉर्मूला हमने डिराइव किया था e रेस्ट पर आयोटा थीटा इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें अगर थीटा को हम x से रिप्लेस करें तो भी ये सेटिस्फाई होता है, और इनफैक्ट अब हम इसको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस कर दें x की जगह पे, स्टिल देन दैट इट इज सेटिस्फाइड। सो ये टेलर सीरीज का जनरलाइजेशन है जो कॉम्प्लेक्स में भी है, वहां से हम इनकी डेफिनेशन बनाते हैं। तो साइन z इज डिफाइंड लाइक, अब आपको साइन z डिफाइन करना है। सो हाउ यू कैन डिफाइन साइन z? e रेस्ट पर आयोटा z इज दिस, e रेस्ट पर माइनस आयोटा z क्या हो जाएगा? cos z minus io sin z. If I subtract these two, what I'll get? e raised to power iz minus e raised to power iz is cos cancel हो जाएगा. I'll get 2i sin z. So what is the definition of sin z? e raised to power iz minus e raised to power minus iz by 2i. This is sin z. So this is how trigonometric sine function is defined. And similarly, you can see cos z क्या हो जाएगा? This one. So I'm giving you the definition of this. So sin z is e raised to power iz minus e raised to power minus iz by 2i, and cos z is e raised to power iz plus this. So these are the definitions of trigonometric functions of complex variables, right? Now, if you talk about their periods, so just a minute. So if you talk about their periods, so for that we should know first the period of, because the sine and cos we have defined in terms of exponential function. Okay, so let me even tell you the exponential function. So the exponential function जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, so what is going to be the e raised to power z? Let me first, क्योंकि वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो मैंने उसको स्किप किया था. Let me recall you. So how we defined e raised to power z? E raised to power z is e raised to power x plus iy, e raised to power x, e raised to power iy है ये, तो e raised to power x, और e raised to power iy क्या होता है? cos y plus I sin y, right? So e raised to power, this is how complex exponential function is defined. E raised to power any z can always be written in this form because z will always have x plus iy form. E raised to power x cos y plus I sin y. Now if I want to find period of e raised to power z, so it will be, if I add 2 pi iota in this, what will happen? E raised to power x plus, let me do it here. Yes, it's e raised to power z plus 2 pi iota will be e raised to power x plus iota y plus 2 pi iota. क्योंकि जो इसमें e raised to power x वाला पार्ट है वो तो पीरियोडिक नहीं होता है. e raised to power x everybody's knows, क्योंकि ये रियल वाला एक्सपोनेंशियल है. इसमें अगर पीरियोडिसिटी आएगी तो वो cos और sin से ही आएगी, और ये cos और sin हमें पता है they are periods with period 2 pi. यार cos y sin y, y is real, right? So real के लिए हमें पता है cos और sin का पीरियड 2 pi है, तो इसका पीरियड आई एम ट्राइंग 2 pi iota बिकॉज मुझे y में इसको लेके जाना है, एंड y इज अ मल्टीपल ऑफ i. सो दिस इज, आई एम जस्ट प्रूविंग दिस. तो जब आप इसको ऐसे लिखोगे, सो यू विल गेट e raised to power x cos y plus 2 pi plus I sin y plus 2 pi. So अब क्योंकि cos और sin का पीरियड 2 pi है, so this will be same as cos y plus I sin y. So this is same as e raised to power z. So I got the period of exponential complex function is 2 pi I, right? Because उसमें 2 pi iota add करेंगे. So by these steps which are clearly telling me this, so basically in general period will be any integral multiple of 2 pi, because cos और sin के लिए 2n pi का कोई भी मल्टीपल हो, चाहे आप प्लस करो चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, you always reach at the same point. This n belongs to integers. So this is the answer where n belongs to integers. So e raised to power z का पीरियड क्या है? 2 pi iota. In general it is 2n pi iota. I hope this is clear to everyone.
राइट. सो दिस इज अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो ये मैंने इसलिए बताया है. तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम साइन और कॉस को, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टर्म्स में डिफाइन किया है, सो नाउ यू कैन सी. सो नाउ यू नो द पीरियड ऑफ e raised to power z. सो अब ये साइन और कॉस भी e raised to power z की फॉर्म में है. अब ये साइन z और कॉस z है. डोंट गेट कंफ्यूज के साइन x या साइन y है. ये z यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है. सो इतना ट्रिवियल नहीं है इसका पीरियड. बट लेट्स सी what is going to be their period. So let me just tell you on the next page. So अगर आप sin z plus 2 pi करते हो, so you are going to get, उसकी वही डेफिनेशन यूज करो जो मैंने आपको अभी बताई है साइन की, ये वाली e raised to power iz minus e raised to power minus iz by 2i. तो z में मैं z को किससे रिप्लेस कर रही हूँ? z plus 2 पाई से, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में यहाँ पे ऑलरेडी आयटा है, तो उसकी वैल्यूज रिपीट होने के लिए आयटा चाहिए. तो ऑलरेडी वो आयटा से मल्टीप्लाइड है. सो मैंने यहाँ पे 2 पाई किया है. 2 पाई आयोटा नहीं है. सो यू कैन सी अब ये क्या बनेगा. सो दिस इज e raised power आयटा z into e raised to power 2 पाई आयोटा minus e raised to power iota z into e raised to power minus 2 pi iota. Right? Sorry. This is like this. मैंने z को किससे रिप्लेस किया? z plus 2 pi से. Right. Now what is the value of e raised to power 2 pi iota? 1. Everybody knows that. That will be cos 2 pi plus iota sin 2 pi. And this will also be 1. So this is basically e raised to power 2 pi iota will be cos 2 pi plus iota sin 2 pi, which is cos 2 pi, which is 1, and similarly e raised to power minus this is 1. So in fact e raised to power 2n pi iota is always plus 1, n being any positive or negative integer. 2 pi है अगर वहां पे, so it's always plus 1. So I got the same formula as sin z. So we got sin z plus 2 pi is same as sin z. तो पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई नंबर मिल जाए कि ये सेम रहे, z प्लस p करने पे z रहे, सो दिस इज योर पीरियड. सो पीरियड ऑफ sin z इज 2 pi और 2n pi, n belongs to integers. मीन्स अगर आपको जनरल आंसर करना है तो 2n pi, एनी मल्टीपल ऑफ 2 pi, और अगर आपको एक सिंगल आंसर देना है, द स्मॉलेस्ट पीरियड की बात कर सकते हो, जिसको हम फंडामेंटल पीरियड भी बोलते हैं, उसको हम 2 pi बोलेंगे. So you see, firstly we derived the period of complex exponential function, and since sine has been defined in terms of exponential function, तो वहां से हमने उसका पीरियड निकाला. Similarly cos का भी आप निकालोगे तो वो भी 2 pi ही आएगा. So let me just list this one for you. So पीरियड जो है e raised to power z का पीरियड है, this is the function, this is the period. So e raised to power z का पीरियड है 2n pi iota और sin z का पीरियड है 2n pi. सिमिलरली आप cos z का पीरियड फाइंड करोगे, जैसे मैंने sin z का आपको डिराइव करके दिखाया है, ऑन द सिमिलर लाइंस यू कैन डिराइव, दिस विल बी 2n pi. ये पीरियड की बात हो गई. अब हम इनके जीरोस की बात करते हैं. जीरोस क्या होते हैं कि ये फंक्शन जीरो कब कब होंगे. अब e raised to power z जीरो कब होगा? लेट्स सी. Let's first find zeros of exponential function. तो e raised to power z कैसे डिफाइंड है अभी हमने देखा. तो इसमें जो ये वाला पार्ट है e raised to power x, ये रियल वेरिएबल है, x इज अ रियल वैल्यू. सो रियल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें पता है इज नेवर जीरो. तो हमें e raised to power z इज इक्वल टू जीरो, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं. तो इसमें ये वाला पार्ट तो हमेशा नॉन जीरो है. सो द ओनली पॉसिबिलिटी for this to be satisfied is this has to be zero. So for this has to be zero, क्योंकि अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एक रियल पार्ट है cos y, इमेजिनरी पार्ट है sin y. So is there any value of y जिसपे cos y और sin y दोनों जीरो बन जाए? There is no such value of y. So this cos y plus I sin y is also non-zero, क्योंकि y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसपे cos और sin दोनों इकट्ठे जीरो बने, क्योंकि एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको जीरो होने के लिए cos और sin दोनों को जीरो होना पड़ेगा, which is not possible. So this concludes that e raised to power z is always non-zero,
क्योंकि इसके कोई जीरो नहीं है, ना ये पार्ट कभी जीरो बन रहा है ना ये पार्ट। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेम्बर कि ये जो कॉम्प्लेक्स वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दिस इज ऑलवेज नॉन जीरो, तो इसके कोई जीरोस एग्जिस्ट नहीं करते। आई होप दिस इज क्लियर। जीरोस निकाल रहे हैं वो नॉन जीरो आया है, राइट। अब हम साइन जेड के जीरोस फाइंड करते हैं। सो जीरोस ऑफ साइन जेड। अब साइन जेड क्या है, ई रेस्ट पावर आई जेड माइनस ई रेस्ट पावर माइनस आई जेड बाई 2i। ये जीरो कब होगा, ई रेस्ट पावर आई जेड शुड बी इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस आई जेड। सो दिस ये कब जीरो होगा, ई रेस्ट पावर 2iz will be 1. Yes, okay, Vidushi, I'm going to explain it again. हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जीरोस मींस हम देख रहे हैं z की कौन सी वैल्यू के लिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीरो होगा। तो हमने इसको जीरो के इक्वल रखा, तो ये नंबर को जीरो होने के लिए या तो इसका ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा e रेज़ टू पावर x, जो कभी भी जीरो नहीं होता है, ये हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी है, इट ऑलवेज स्टेज अबव द जीरो लाइन, इट्स नेवर जीरो। और ये जो ये वाला पार्ट है ये तब जीरो होगा जब cos और y एक साथ जीरो होंगे, ये भी जीरो हो तभी जीरो हो, तभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो बनता है, अगर उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो हो। और कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जिसपे cos और y साइमल्टेनियसली, cos और sin साइमल्टेनियसली जीरो बने, इसलिए ये वाला पार्ट भी जीरो नहीं है। सो क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इज ऑलवेज नॉन जीरो, सो दिस कंक्लूड्स दैट कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कोई जीरोस नहीं है, राइट, इट्स नेवर जीरो। इट्स जस्ट अ प्रॉपर्टी you need to remember, we will use it in the question. On the similar lines I'm going to find zeros of sin z. तो उसके लिए मैंने sin z का फॉर्मूला यूज किया, उसको जीरो रखा, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। तो मुझे अब देखना है कि e रेज़ टू पावर 2iz 1 कब होता है। तो मैंने आपको अभी बताया था, तो इट्स लाइक नाउ यू गॉट अ इक्वेशन टू सॉल्व। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, मुझे यहाँ पे z की वैल्यू निकालनी है कि z की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होगी। सो कैन यू गिव द आंसर, कब होगा ये? बी कॉम्प्लेक्स है तो इसमें एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, सो वी नो दैट। तो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी नंबर है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। अब यहाँ पे हम वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने चैप्टर के बिगिनिंग में आपको बताया था मैंने, कि गिवन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन ऑलवेज राइट इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब 1 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 1 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है e रेज़ टू पावर 2n पाई आयोटा, बिकॉज मुझे पता है cos 2n पाई प्लस आयोटा sin 2n पाई, ये हमेशा जीरो होता है, ये हमेशा 1 होता है, राइट। दिस इज ऑलवेज 1, 2 पाई का कोई भी मल्टीपल पे आपको साइन निकालोगे। सो ये आपको हमेशा याद रखना है। 1 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, ये -1 का क्या है, ये। अब मतलब ये डायरेक्ट बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा, आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये होगा cos n पाई प्लस आयोटा sin n पाई। सो ये cos n पाई हमें पता है क्या होता है, ओके सॉरी ये नहीं है, मैं इसको और इलेबोरेट कर रही हूँ। cos n पाई हमारे पास -1 की पावर n होता है। सो इफ यू वांट दिस टू बी -1, सो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है n इज ऑड, क्योंकि इवन वालों पे ये 1 देगा, ऑड वालों पे ये -1 देगा, राइट। सो विल कम टू दैट। अभी इस क्वेश्चन में हमें ये -1 नहीं चाहिए, इस क्वेश्चन में हमें 1 ही चाहिए था, तो 1 को मैं इक्वेट कर रही हूँ e रेज़ टू पावर 2n पाई आयोटा से, इस तरफ है 2z आयोटा। सो आपके पास क्या आ गया आंसर, z इज n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन अब हम करेंगे कि आपको इक्वेशन गिवन होगी, आपको सॉल्व करना है। विल डू मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, बट पर्टिकुलरली अभी के लिए हमने इसके जीरोस फाइंड करने के लिए इसको यूज किया था। तो इसको आपको याद रखना है दैट साइन z इज जीरो इफ एंड ओनली इफ z इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये रियल में भी यही सॉल्यूशन होता है, रियल वेरिएबल के लिए भी, कॉम्प्लेक्स के लिए भी वही आया आपके पास। I hope this is clear now. तो जो आप z equal to 0 बता रहे हो, yes that is correct, but that is one solution.
आई एम लुकिंग फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इस केस में इक्वेशंस के आपके पास हमेशा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे बिकॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शंस। 2 पाई ऐड करते वो वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। तो 0 एक सोल्यूशन है, 2 पाई एक सोल्यूशन है, पाई भी है, 3 पाई भी है, -3 पाई भी है, -5 पाई भी है, बिकॉज ये n आ गया आपके फाइनल आंसर में, n हैज टू बी इंटीजर। तो ये सारे आप जब साइन z में पुट करोगे यू विल गेट द 0। तो सिमिलरली आपका टास्क है आप cos z के जीरोस फाइंड करोगे। फाइंड जीरोस ऑफ cos z, बहुत आसान होगा। लेट मी शो यू, मैं कर ही देती हूँ। So cos z is 0 means e raised to power iota z plus e raised to power minus iota z by 2 is 0. So this will give me this. So this will actually give me -1. जब मैं e raised to power iota z, ये यहाँ पे नेगेटिव है, लेट मी राइट इट अगेन, ये नेगेटिव आएगा। जब आप इस तरफ शिफ्ट करोगे आपके पास ये आएगा। तो जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाए तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करेंगे। तो -1 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है e raised to power n pi i where n is odd। तो ऑड नंबर्स की हमें रिप्रेजेंटेशन भी पता है। हम ऑड नंबर्स की रिप्रेजेंटेशंस उसको सीधा आप 2k+1 भी लिख सकते हो, 2n+1 भी लिख सकते हो, बिकॉज वो तो इंटीजर है, उसने इंटीजर वैल्यू लेनी है। So n be any value, 2n+1 is always representing the odd. So जो 2n पाई था वो even के लिए था, 2n+1 odd के लिए होगा। So इसको जब आप अब कंपेयर करोगे, so what you will be getting, z is equal to 2n+1 pi by 2. So you will be getting n plus 1 by 2 pi. So these are your zeros of cosine z. Right. So that's how you got the functions, their periods and zeros. So now we are going to do few questions. Let me complete them and after that you can ask your doubts. Okay, so let's first do a particular question. So solve the equation So आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, अब आपको सॉल्व करना है। So सॉल्व करने के लिए जो आपने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूज किए हैं उनको डायरेक्टली आप इसमें यूज कर सकते हैं। जो आपने पीरियड्स और जीरोस उनके निकाले हैं डायरेक्टली उनको क्वेश्चंस में यूज करेंगे। So say this is first question. So that means what do you mean by solving the equation? By solving the equation we mean we need to find all the possible values of z which will make this equation satisfy. So अब ये है cos of something is 0, right? So that means cos कब 0 बन रहा है, तो हम इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज करेंगे कि cos z जब भी 0 होता है then z means this. तब डिफरेंस क्या है, उसमें z नहीं है, z की जगह पे कुछ और होगा, तो z की जगह पे है z minus 2 iota. So we know that cos of z minus 2 iota is 0 if and only if z minus 2 iota is this. तो z की जगह पे जो भी यहाँ पे है वो आप रिप्लेस करोगे और इधर ये यूज करोगे n plus half pi, where we know that n belongs to integers. So z is equal to 2i plus n plus half pi. Yeah, that's it. That is your answer. ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी थी, इक्वेशन मींस आपको इसके इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस निकालने थे, तो हमने डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर लिया कि कोसाइन कब 0 बनता है। कोसाइन तब 0 बनता है जब ये z minus 2i is the odd multiple of pi by 2. So आप इसको 2n plus 1 pi by 2 भी लिख सकते हो, बट उसमें भी by 2 आता है, so आप n plus half by जैसे भी इसको, it's one and the same thing. So this is the answer to that question. Okay, so let me do another question. इसमें ये सब हम solve the equations वाले ही कर रहे हैं. So the other question is this, right? अब ये आपको कोई भी इक्वेशन आए, टेक्निक यही है कि आपको उसको सॉल्व करके एक्सपोनेंशियल कॉस या साइन के फॉर्म तक लेके जाना है ताकि आप उनका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करो। अब जो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल है उसको हम एक्सपोनेंशियल में ही रखते हैं, बिकॉज वी नो दैट कॉस एंड साइन को तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना इजी है, बट जो एक्सपोनेंशियल ऑलरेडी है उसको हम कोसाइन और साइन में नहीं लेके जाते हैं, विल कीप इट लाइक एक्सपोनेंशियल ओनली। सो इसको सॉल्व करने के लिए I told you the technique
कि जो भी एक्सपोनेंशियल आए, दूसरी तरफ जो भी नंबर बने उसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है. सो ये -2 आया है. सो -2 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? सो दिस इज लाइक समथिंग 2 into -1, बिकॉज किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी नो दैट z इज इक्वल टू ये होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का. इस -2 को आप एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, राइट? सो -2 का मुझे ये r थीटा फॉर्म चाहिए, पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो जिसमें r हमेशा हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव. तो इसलिए मैंने r को अलग रख लिया और जो बाकी पार्ट बचा -1, तो इस -1 को आई विल बी राइटिंग एज e रेज़्ड टू पावर आयोटा थीटा. सो -1 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म अभी आपको बताया था, e raised to power 2n plus 1 pi by 2 I. These are the odd multiples of pi by 2. No, sorry, not pi by 2. Yeah, these are the 2n plus 1 pi I. E raised to power I z plus 1. Is this clear? I hope this is clear. ये वही चीज है जो हमने यहाँ पे यूज किया था, यहाँ पे -1 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू आप कुछ चीजें याद ही रख सकते हो. जैसे 1 आए उसको इससे रिप्लेस कर दिया, -1 आए तो उसको ऑड से 2n plus 1 से रिप्लेस कर दिया. सो व्हेन यू गॉट दिस, तो इसके बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, अब अगर ये 2 यहाँ पे नहीं होता तो हम डायरेक्टली इसको, जैसे आप यहाँ पे भी बता सकते हो व्हाट आई एक्चुअली डिड. जब मैंने ये लिखा उसके बाद मैंने ये कैसे लिखा, एक्चुअली आई टुक लॉग. आप एक्सपोनेंशियल को ऐसे खत्म नहीं कर सकते हो, बेसिकली वो हिडन है, हम उसमें लॉग ले रहे हैं ऑन बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू e, दैट्स व्हाई दे आर मैचिंग. तो यहाँ पे भी वही करेंगे, क्योंकि आपको z का आंसर चाहिए तो z पे पहुंचने के लिए आपको e को खत्म करना पड़ेगा. सो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो हम लॉग जो ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू e ले रहे हैं ऑन बोथ द साइड्स. सो दिस विल गिव यू iz plus 1 is log 2 plus I 2n plus 1 pi, right? ये वाला e, this is how mathematically you can understand. So अब आपको बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और z की वैल्यू निकालनी है. So it's easy now. -1 उधर चला जाएगा, so log 2 -1 plus I 2n plus 1 pi, और अब z निकालना है तो आयोटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दो. So दोनों तरफ डिवाइड करोगे माइनस आयोटा, ये आयोटा से डिवाइड करोगे खत्म हो जाएगा. सो फाइनली योर आंसर इज 2n plus 1 pi plus I 1 minus log 2, राइट? तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया, जब आयोटा से डिवाइड किया तो 1 by आयोटा इज ऑलवेज माइनस आयोटा, वो मैंने यूज किया है. तो ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली इन इक्वेशंस में यूज करना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल्सो वेरी स्टैंडर्ड, यू कैन यूज इट. I hope this is clear to everyone, right? तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, सिर्फ बेसिक्स यूज कर रहे हैं, उनकी डेफिनेशंस और उनके फॉर्मूलाज, राइट? Okay, so this was about this particular question, and let me see. I have one last question to do. Yeah. So for that, okay, let me just. विदुषी e raised to power n pi I for -1 e raised to power n pi I, अगर आप इसको लिखते हो तो ये बनता है cos n pi plus sin n pi. sin n pi तो हमेशा 0 है, तो ये cos n pi. अब cos n pi n ऑड है कि इवन है उस पर डिपेंड कर जाता है, तो दैट इज वाई ये -1 की पावर n होता है. तो अगर n ऑड होगा तब तो ये वैल्यू -1 लेगा, अगर n इवन होगा तो ये +1 बन जाएगा. बट आई वॉन्ट -1, तो मुझे पता है ये तभी सेटिस्फाई होगा अगर n ऑड होगा. तो n ऑड है इसलिए हम डायरेक्टली उसको 2n plus 1 लिख देते हैं. तो आप 2k plus 1 भी लिख सकते हो, जो भी मतलब आप लिखना चाहते हो, राइट? सो I hope this is clear. Now I'm going towards the last question. Let me just clear this one. Right. I'm going to take up that kind of question also. Actually, let me see the exact statement where it is. I had one question of that kind where we have 1 plus I
just give me 1 second. Okay, ये भी ट्यूट शीट का क्वेश्चन है that we can take. So this is solve this equation. E raised to power 2z minus 1 is 1 plus I. क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उन दोनों में या 1 हो रहा था या -1 हो रहा था या कोई और नंबर था. अब यहाँ पे एक ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अब फर्स्ट टास्क इज हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो यहाँ पे यू यूज द बिगनिंग 1 प्लस आई का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे आएगा? तो r, we know what is the form, r e raised to power iota theta. Theta is the argument. r क्या है इसका? Square root 2. Everybody can find that. And e raised to power I, we know that this is pi by 4, right? जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चंस किए थे, फाइंड द पोलर फॉर्म, फाइंड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वहां से आप यूज करके वो कर सकते हो. सो द मोमेंट यू राइट इट इन दिस फॉर्म, सो यहाँ पे अब दो तरीके हैं. आप तो जैसे अब यहाँ पे कर रहे थे, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे हम n इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि सो दैट वो आप फाइनली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ले आओ. तो दूसरा तरीका होता है आप यहाँ पे एक वैल्यू रखो, लास्ट में जाके उसको ऐड करो. बट आई सजेस्ट आप यहीं पे इसको कर दो, बिकॉज हमें पता है कि किसी भी आर्गुमेंट में 2n पाई का कोई भी मल्टीपल या हम 2 पाई का कोई भी मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट रिमेन्स सेम. सो जो भी पोलर फॉर्म यहाँ बनेगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो भी थीटा बनेगा उसको यही जनरलाइज फॉर्म में लिख दो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर सपोज टू फाइंड द infinitely many solutions where n belongs to integers. So I got this. Now the next step is taking log. So when you take the log with respect to e, you'll get 2z minus 1 log root 2 plus I pi by 4 plus 2n pi. उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है, बस उसको z को एक तरफ रखना है, बाकी सब दूसरी तरफ चला जाएगा. So this will be 1 plus log root 2. उसको भी आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो. अदरवाइज इस तरफ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी वाले पार्ट में, रियल पार्ट रियल वाले पार्ट में ऐड हो जाएगा. सो योर फाइनल आंसर इज 1 प्लस log root 2 by 2 plus iota by 2 pi by 4 plus 2n pi. This is a complete list of infinitely many solutions because it has got a parameter n which can have any value, positive, negative, integers. So this equation is being satisfied by infinitely many points, and these are all those points. So I hope the hierarchy of doing these kind of questions is clear. So any complex number, the technique is always going to remain the same, right? One more question we are going to do, just one more question, and then we'll finish this one. No hyperbolic functions we do not have, Aditya. Agar wo hote to I would have introduced you. So I hope everybody has understood this one. So one last question we are going to take up. The same statement, solve. We are solving the equation cos z is 2 this time. So इसमें हम cos का definition use करेंगे, क्योंकि zero नहीं है. अगर तो zeros वाला होता, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, ये वाला, या इसमें जीरो था, तो हमने जीरोस ऑफ कोसाइन फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया और डायरेक्टली z की वैल्यूज आ गई. बट अब जीरोस नहीं है, कोसाइन ऑफ z इज समथिंग नॉन जीरो, तो इसमें हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो कोसाइन का एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला इज दिस, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ cos z. सो जब आप इसको यूज करोगे, so you will be getting an equation e raised to power 2iz minus 4 e raised to power iz plus 1 is 0. आप e raised to power minus iz से divide कर दो, you will get this one. So this basically is this equation, looks like a quadratic equation where w is this. So w is e raised to power iz, and so this equation becomes a quadratic equation, w square minus 4w plus 1. So we know that. तो जैसे रियल में quadratic equation solve करते हैं, we do have the same formula in complex also. So आप quadratic equation के roots निकालोगे, you will get two values. तो that means ये जो e raised to power iz है, इसकी दो values आएंगे, 2 plus minus root 3. तो अब आपको exponential से बस z जाना है, तो just take the log, right? So obviously before taking the log हमें इसको इधर exponential form में लिखना पड़ेगा. So 1 is this 2 plus root 3, another equation is 2 minus root 3.
सो 2 प्लस रूट 3 इट्स जस्ट अ रियल नंबर. जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, मैंने वो इरेज कर दिया. लेट मी टेल यू, जैसे अभी आया था -2, तो -2 को मैंने लिखा था 2 इंटू -1 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म. जस्ट अ रियल नंबर, तो इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब 2n पाई आयोटा 1 है. बिकॉज अगर तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आया जैसे अभी किया था हमने, तो आपको उसके आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा. बट जब भी वो रियल नंबर आता है तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है, उसका पॉजिटिव पार्ट रख लो, और जो बाकी बचा, अगर 1 ही बचा तो e रेज़ टू 2n पाई आयोटा, अगर -1 बचा, अगर वो नंबर नेगेटिव है तो वो 2n + 1 पाई. सो अब आप लॉग लोगे, सो यू विल गेट द आंसर आयोटा z इज log 2 + √3 + 2n पाई आयोटा. आयोटा से डिवाइड करोगे, you will get the answer 2n पाई plus minus iota log 2 + √3. ये एक वैल्यू आ गई, और सिमिलरली ये 2 - √3 से भी आ जाएगा, तो मैं यही लिख देती हूँ 2 ± √3. So these are all your infinitely many solutions of this equation. Cos z is equal to 2. राइट. अच्छा, एक स्मॉल क्वेश्चन हमारे पास बचा है, फाइंड द पीरियड. तो पीरियड का एक क्वेश्चन है, जैसे आपके पास आए sin आयोटा z + 2, आप इसका पीरियड फाइंड करना चाहते हो. सो पीरियड के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा. सो लेट पीरियड इज p. सो पीरियड की यही डेफिनेशन होती है दैट इफ यू चेंज z to z + p इट रिमेन्स सेम. सेम मीन्स जो भी ये है सेम रहेगा, i z + 2. तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट sin iz + 2 + p इज sin iz + 2. अब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. इट्स लाइक sin w + p इज sin w. वो z नहीं होगा, z के अलावा कुछ और होगा, तो आप उसको इस फॉर्म तक ले आओ. आप उसमें p ऐड करो. अच्छा सॉरी, यहाँ पे आयोटा p होगा ना, i × p हो जाएगा. सो ये कब होता है, साइन का पीरियड क्या है, हमने निकाला था पीरियड ऑफ साइन इज, अभी आई लिस्टेड आउट, पीरियड इज 2n पाई. तो आपको बस उसको 2n पाई के इक्वेट कर देना है. तो जो भी ये w प्लस आया, तो ये आया था आयोटा p इज 2n पाई. दिस गिव्स मी पीरियड इज 2n पाई आयोटा. आयोटा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट. सो ये पीरियड फाइंड करने के भी एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ट्यूट शीट में, और ये ऐसे ही होंगे. What is the technique? Z को चेंज कर दो, Z + P. P इज द पीरियड जो आप फाइंड करना चाहते हो. उसके बाद उसको उस फॉर्म में ले आओ, आप ओरिजिनल फंक्शन की फॉर्म में, साइन है या कोसाइन है या कोई भी है, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो. नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स. वी आर फाइनली डन विद ईच एंड एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन. नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स. Yes, please raise your hands if any doubts you have. I know it was a bit quick, the last lecture thoda overload ho gaya hai, but you can see later on the video in parts and try to understand this. I'm again telling you, if at any point of time you feel that you have doubt in any of the concept, you just have to request me for a doubt lecture, then possibly we can arrange for that. Yes, Prabnoor, which question you are asking? Cos z is equal to 2 or the other one? I'm giving you the option of unmuting yourself. You people can unmute yourself and speak up now. Ma'am, the sine one, the last one in which there was a period. Period, okay. So let me explain this again. So जैसे ये था sin, कुछ भी फंक्शन आपको दे देंगे. ऑब्वियसली वो ये नहीं पूछेंगे कि sin z का पीरियड बताओ, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड है, हमने डिराइव कर ही लिया 2n पाई. वो z को चेंज कर देंगे, तो z को कुछ भी चेंज कर सकते हैं. सपोज वो करें z को z + 3i. सपोज वो पूछे sin z + 3 आयोटा का पीरियड बताओ, तब उसको कैसे करना है, आपको z को चेंज करना है z + p. p इज अवर अननोन पीरियड जो हम फाइंड करना चाहते हैं, उसको इक्वेट कर देना है ओरिजिनल फंक्शन से, बिकॉज वो सेम रहेगा, पीरियड की वही डेफिनेशन है. तो इसको अब आप लिखेंगे z + 3i + p.
z plus 3i. अब z plus 3i को मैं कुछ w कुछ भी suppose I can, because that's just a complex number, right? तो अब ये कब होगा? साइन ऑफ w प्लस p इज साइन w कब होता है? जब p क्या होता है? 2n पाई. तो यहाँ पे जो भी होगा आपको उसको 2n पाई से रिप्लेस कर देना है, बिकॉज हमें पता है स्टैंडर्ड पीरियड उसका 2n पाई. तो ये मैच कर गया तो ये हो जाएगा. तो इसका भी पीरियड क्या आया? 2n पाई. अब ये क्वेश्चन में क्या था? z सिंपली नहीं था, z i से मल्टीप्लाइड था. तो क्योंकि z i से मल्टीप्लाइड था, तो जब मैंने इसको रिप्लेस किया iz प्लस 2 से, सो ये iz प्लस 2 iz प्लस 2, उसको मैं कुछ मान लेती हूँ w. तो अब ये w सेम, तो दैट मीन्स ये पीरियड है साइन का, और साइन का पीरियड हमें पता है क्या है? 2n पाई. तो यहाँ से p की वैल्यू आई 2n पाई बाय आयोटा, विच इज माइनस 2n पाई आयोटा. क्योंकि बट n जो है इंटीजर है, तो आप ये नेगेटिव लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है, राइट? क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव n में एडजस्ट हो ही जाना है. तो एक्चुअल आंसर इज माइनस 2n पाई आयोटा, बट क्योंकि n की पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं नेगेटिव भी हैं, तो अगर आप आंसर 2n पाई आयोटा भी लिखते हो तो भी ठीक है, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव विल बी एडजस्टेड इन n ओनली. तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपको फर्क समझ में आ गया है. टेक्निक वही है, बट फाइनल आंसर में यहाँ आयोटा नहीं आया था क्योंकि z was z ओनली. यहाँ पे वो i से मल्टीप्लाइड था, तो पीरियड i से डिवाइड हो गया. सो ये आपको कॉस के लिए भी सेम फंक्शन आ सकता है, सेम क्वेश्चन, और एक्सपोनेंशियल के लिए भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है. टेक्निक वही रहेगी. अब मैं बोलूं आपको e रेस्ट पर आयोटा z का पीरियड निकालो तो प्लस 3 सपोज, तो टेक्निक क्या रहेगी? e रेस्ट पर आयोटा z प्लस p प्लस 3 शुड बी सेम एज e रेस्ट पर आयोटा z प्लस 3. तो जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा दिस हैज टू बी 1. e raised पर iota p has to be 1, so iota p has to be 2 pi iota, 2n pi iota, so p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2n pi. तो वही हम स्टैंडर्ड जो 3 पीरियड किए हैं एक्सपोनेंशियल कॉस ऑफ साइन के, उनको यूज कर रहे हैं. So we are done with classes now. This was just for the leftover the syllabus. We arranged a class today, right? So ऐसे एनालिटिकल फंक्शन का दूसरा वाला क्वेश्चन जो है, सॉरी एनालिटिक फंक्शन का विदुषी. मैम जिसमें आ रहा है 2 into e to the power x cos y 0, उसमें ये आ रहा था इक्वेट करके, तो मैम y पाई बाई 2 हो जाएगा डायरेक्टली. कहाँ पे था? मैम आपने नहीं करा है, जो सेकंड क्वेश्चन है. ठीक है, हम कर लेते हैं. ओके, यू कैन टेल मी द स्टेटमेंट. मैम fz, मैम आई विल टेल यू व्हाट ux I can tell you. e to the power x cos y. ये क्या है? ux है. ओके ओके, सो दिस इज ux. yes ये आप हार्मोनिक वाला पार्ट बता रहे हो? नो मैम वो वाला जैसे CR कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं ना जब इक्वल. ओके ओके ओके, हाँ ठीक है. तो जैसे ही आप इसको, आई थिंक इसमें vy 0 आता है. मैम vy माइनस e to the power x cos y. हाँ, vy इज माइनस e raised to power x cos y ना. हाँ, तो जैसे ही आप ux इज इक्वल टू vy लगाओगे, so you will get e raised to power x cos y is minus e raised to power x cos y, which will be making it 2 times e raised to power x cos y is 0. So again the same logic. ये तो 0 है नहीं है, 2 into e raised to power x, तो it's only satisfied when cos y is 0. तो cos y 0 के solutions हमें पता है, pi by 2, 3 pi by 2, right? तो यहाँ से y की वैल्यूज आ गई. सिमिलरली दूसरी कंडीशंस है आपके पास, जो uy is minus vx, वहां से भी कुछ वैल्यूज आ रही हैं आपके पास. मैम उसमें भी y के टर्म्स में ही आ रहा है, y 0 आ रहा है. आई थिंक x 0 आएगा. मेरे पास वो अभी है नहीं है क्वेश्चन, बट आई थिंक आई हैव सो सीन दिस वन. सो उससे भी कुछ, लेट मी जस्ट गिव मी 1 minute, मे बी आई हैव डन दिस वन. ओके, या दूसरे आ रहा है हमारे पास ux, नहीं उससे कुछ नहीं आ रहा है.
दूसरी कंडीशन से कुछ नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में। ux इज जब आप vx इज माइनस uy वाली कंडीशन यूज करोगे ना, वो डिफॉल्ट सेटिस्फाई हो रही है। यस, दोज हु आर गेटिंग वंडरिंग, सो ये ट्यूबशीट का क्वेश्चन है, जैसे हम वो चेक कर रहे थे एनालिटिक है कि नहीं, तो दूसरी CR कंडीशन से कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, वो डिफॉल्ट सेटिस्फाइड है। सो दैट मीन्स y के ऊपर कंडीशन आ गई है, दैट मीन्स साइमल्टेनियसली हमें देखना है, ऑब्वियसली ये नहीं कि एक कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो ओवरऑल दोनों CR कंडीशंस को सेटिस्फाई होने के लिए द कंपल्शन इज y हैज टू बी π/2 3π/2। तो दैट मीन्स y, तो y की स्पेसिफिक वैल्यूज आ गई ना यहाँ पे। सो Yes, x ma'am. तो कुछ भी हो सकता है, मीन्स x कैन हैव एनी वैल्यू बट y इज स्पेसिफिक। सो y स्पेसिफिक मीन्स आपको पता है y π/2 मीन्स अगर आप xy प्लेन में इसको देखो, so it will be like it can be 0, π/2, it can be 1, π/2. Suppose this is the line y is equal to π/2. So इस लाइन पे पॉइंट्स मिलेंगे, इस लाइन पे हर जगह आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, Yes, ma'am. राइट, बट स्टिल नॉट एनालिटिक, क्योंकि हमें इंटरवल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नेबरहुड, सर्कुलर डिस्क टाइप ऑफ नेबरहुड। तो जैसे आप इस नेबरहुड में इस लाइन के अबव मूव करोगे या बिलो मूव करोगे तो डिफरेंशिएबिलिटी चली जाएगी, बिकॉज सिर्फ π/2 पे रहते हुए, इस लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहते हुए आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी है, नेबरहुड में नहीं है, तो ये भी नॉट एनालिटिक एनीवेयर आएगा। Yes, ma'am. Okay. हाँ, इसमें पॉइंट्स तो ज्यादा हैं, जैसे आप सोच रहे हो कि π/2 वाली लाइन पे देखो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, क्योंकि x कहना है एनी वैल्यू, तो इन सब पे डिफरेंशिएबिलिटी है। बट ये अगर एक रियल लाइन का क्वेश्चन होता देन इट वुड हैव बीन द आंसर, बट एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो नेबरहुड्स होते हैं वो सर्कुलर डिस्क टाइप होते हैं, सो स्टिल द आंसर फॉर दिस पार्ट इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर। The same reason you have to give, that you cannot find any neighborhood of this y is equal to π/2 where the function is differentiable, therefore not analytic. Okay, ma'am. Thank you. Yes, so this was our last class. There will not be any class officially from tomorrow onwards, but I'm here for doubts. You can ask me your doubts anywhere, and I'll share the this lecture as well as the notes, the handwritten notes of this in few days. I'll upload that in the drive also. मैम EST कब से शुरू होने वाले हैं? That's not मेरे पास आंसर नहीं है उस क्वेश्चन का, बिकॉज अभी तो सेकंड थर्ड ईयर के EST होंगे, उसके बाद ही फर्स्ट ईयर के EST की टर्न आएगी। मैम Okay. यही क्वेश्चन अगर एक कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे पूछना था मैम, अगर एनालिटिक है कि नहीं, सपोज एट 1,1 देन वी वुड हैव फाउंड ux and uy बाय द लिमिट मेथड। नहीं, आप फाइंड कर लो, वो लिमिट वाले मेथड से तब फाइंड करने की जरूरत होती है अगर उस पॉइंट पे प्रॉब्लम हो तो। जैसे वो कल हमने किया था क्वेश्चन fz वाला, तो उसमें वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट था क्योंकि उस पे फंक्शन वाज टेकिंग अ डिसकंटिन्यूटी देयर, उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी थी। अब मान लो यही फंक्शन है, अब ये तो या कोई और फंक्शन है, जैसे कोई भी फंक्शन आपको दे दो which is like यही आप एग्जांपल ले लो 1/z - 1, तो ये 1,0 को छोड़ के बाकी हर जगह डिफाइंड है। तो इसको अगर आप 1,1 पे चेक करना चाहो इस फंक्शन को, तो यहाँ पे फिर जो आपने फिर u और v फाइंड किए हैं, क्योंकि ये 1,1 पे डिफाइंड है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट 1,1, राइट, तो आप इनको यूज कर सकते हो टू फाइंड ux bx uy vy। वो एट अ स्पेसिफिक पॉइंट तभी फाइंड करने हैं जब वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट हो, मींस आपके u और v वेरी कर रहे हो कि उस पॉइंट पे u और v अलग है, उसके अलावा u और v अलग है। मैम अगर एक रीजन के अंदर मैम डिफरेंशिएबल हो मैम, जैसे सपोज सर्कुलर रीजन है, उसके बाहर ना हो, तो बाउंड्री पॉइंट्स तो एनालिटिक नहीं होंगे ना, क्योंकि एक साइड डिफरेंशिएबल है एक साइड नहीं है। आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, सॉरी, दोबारा बताओगे? हम सपोज एक सर्कुलर रीजन है, उसके अंदर डिफरेंशिएबल है, उसके बाहर नहीं है, तो जो सर्कल के बाउंड्री पे पॉइंट्स हैं वो एनालिटिकल नहीं होंगे ना। मतलब आप उस पॉइंट बाउंड्री की बात कर रहे हो? बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो एनालिटिकल नहीं होंगे ना, क्योंकि एक साइड एनालिटिकल है दूसरी साइड नहीं है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको ऐसा फंक्शन मिलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जो हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं ये कभी भी आपको ऐसे गिवन नहीं होते हैं, ये आपको
मीन्स इट्स आर्बिट्रेरी काइंड ऑफ नेबरहुड। आप इस नेबरहुड को छोड़ के फिर आप कहेंगे ठीक है बाउंड्री पे प्रॉब्लम है तो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, हमें तो एक नेबरहुड चाहिए ना। तो उस नेबरहुड में जो आप अंदर बनाया आपने छोटा नेबरहुड, तो उसमें तो हर जगह एनालिटिक होगा, उसकी बाउंड्री पे भी एनालिटिक होगा, राइट। सो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड एग्जैक्टली कि जब उसकी एनालिटिसिटी चली गई, वो बाउंड्री फाइंड करना एग्जैक्टली इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क कि यहीं तक है उसके बाद नहीं है, राइट। तो ये नेबरहुड फाइंड करने वाली चीजें हैं ना, ये उतना आसान नहीं है कि जैसे हम सीरीज में फाइंड कर लेते थे कि यहीं तक इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो एग्जैक्टली यहीं पे जाके इसकी कन्वर्जेंस चली जाएगी। वहां पे वो बहुत इजी होता था, बट यहाँ पे ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, तभी आपको बताया जाता है देयर एग्जिस्ट सम नेबरहुड। बट अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक नेबरहुड बता दो जो सबसे बड़ा नेबरहुड है जिसमें ये है, उसके बियॉन्ड नहीं है, तो that will be very hard question. Okay मैम। Even our knowledge means जितना हम इस सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे हैं उसके बेस पे वो चीजें डिराइव करना बहुत, एंड इट्स नेवर द क्वेश्चन आस्क्ड एक्चुअली। आप अगर मैथ्स के डीप में जाओगे दैट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नेवर आस्क्ड वैसे भी, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं कि कोई एक एग्जिस्ट करना चाहिए, तो एक मिल गया तो मिल गया, एक्चुअली वो डेफिनेशन होती है, इसमें लिखा जाता है। Howsoever, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन, तो वो बात का सेंस नहीं है कि आपकी बाउंड्री पे एनालिटिक नहीं होगा, आप इसको डिफरेंशिएबिलिटी से एक्चुअली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे हम इंटरवल्स में बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, कि इस तरफ राइट हैंड डिफरेंशिएबल होता है, लेफ्ट वाला नहीं होता है। मैम ऐसे जैसे कि सपोज इस सर्कल पे कोई हमने एक पॉइंट ले लिया, सपोज एक पॉइंट ले लिया, अब वो पॉइंट एनालिटिक है कि नहीं है? हाँ, मतलब पॉइंट नहीं, फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक है कि नहीं है, आप ये पूछ रहे हो? यस मैम, फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक है कि नहीं है, क्योंकि हम एनालिटिक होने के लिए उसके सराउंड नेबरहुड वाले पॉइंट्स डिफरेंशिएबल होने चाहिए। मैं समझ गई, हाँ, तो उसके इधर वाले सपोज हैं, इधर वाले नहीं हैं, यस मैम, यस मैम, राइट। हाँ, तो नहीं होगा, क्योंकि आपको कोई भी ऐसा पूरा नेबरहुड नहीं मिलेगा जिसमें आपको वो मिल जाए, डिफरेंशिएबिलिटी मिल जाए। वही यहाँ पे हो रहा था ना, इस क्वेश्चन में सिमिलर ही हो रहा था जो ये अभी हमने क्वेश्चन किया था, ये वाला। इसमें चलो एक लाइन मिली थी y इज इक्वल टू π/2। कई बार रीजन्स मिल जाते हैं कि सपोज इस लाइन के नीचे हमेशा डिफरेंशिएबल है, बट सपोज इस लाइन पे भी डिफरेंशिएबल है, बट इस लाइन के ऊपर जाते डिफरेंशिएबल नहीं है, सपोज किसी सिचुएशन में ऐसा हो, तब भी आंसर नॉट एनालिटिक ही आएगा, क्योंकि नेबरहुड बनाने के लिए आपको दोनों तरफ से, बिकॉज द नेबरहुड्स आर ऑलवेज लाइक ओपन डिस्क, तो नॉट एनालिटिक ही आएगा। ओके मैम, ये तो समझ में आ गया मैम। अभी आप इस कन्वर्जेंट बोल रहे थे मैम, वो कन्वर्जेंट कहाँ से आया मैम इसमें? नहीं आया नहीं, मैं आपको रिलेट करने की कोशिश कर रही थी कि जैसे सीरीज में कन्वर्जेंस होता था कि हम एग्जैक्टली डिटरमाइन कर लेते थे कि सेंटर पॉइंट से स्टार्ट हो तो आप 2 रेडियस तक मूव करो, वहां तक कन्वर्जेंस है, उसके बाद नहीं है, तो आपको बाउंड्री मिल जाती थी कन्वर्जेंस की ना, एरिया मिल जाता था। यस मैम। यहाँ पे भी सिमिलर चीज है कि हम उस पॉइंट से मूव करने एक नेबरहुड ढूंढ रहे हैं कि हमारी एनालिटिसिटी जो है, डिफरेंशिएबिलिटी मेंटेन रहे, तो वो ऑब्वियसली हो सकता है कि पर्टिकुलर पॉइंट के बाद डिफरेंशिएबिलिटी चली जाए, बट आई वाज जस्ट सेइंग कि वो पॉइंट डिटरमाइन करना कि कहाँ तक है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, वो बहुत मुश्किल है। हमें बस पता होता है कि है ऐसा एक नेबरहुड जिसमें है, बट वो नेबरहुड एग्जैक्टली क्या है, उसका रेडियस क्या है, इट्स नॉट क्वांटिफाइबल। That's what I was telling. Okay ma'am, thank you ma'am. Okay, thank you. So anyways, this is all what we have, and if you'll go through these lectures again, and so you'll be able to do all the questions. So that's all from my side. All the best for your exams, MSTs and ESTs, and in between you can stay in touch with me for any kind of doubts or any solution if you need, right? Okay, so thank you everyone. I'm going to end this one. I'll upload the recording.